Maybe because he didn't have any report about the Ryujin's race, Freed was truly surprised. Seeing this situation, he created his thread, took out another fabric from his pocket and tried to chant the Age of Gods magic again. However, he was interrupted by the impact followed by the voice behind him. It was Hajime who arrived behind Freed. Unbeknownst to him, Freed the fire donor in succession. While blood was poured out of his wound, 6 bullets were fired with one firing sound. All the bullets, without deviating even a millimeter, were hitting the same place. The turtle-shaped demonic beast by Freed's side had activated the barrier faster than Freed could react, but one impact in almost zero distance by the flashes, the barrier shining in reddish black was easily smashed. Following that, Hajime slipped into the bosoms of the Freed, who displayed his irritation and panicked. Activating the blind claw on Donner, Hajime swung it at once. हालांकि हो सकता है इस वजह से क्योंकि जो फ्रीड है उसको रीजन रेस के बारे में कुछ नहीं पता था, तो फ्रीड बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और इस सिचुएशन को देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने एक फैब्रिक अपनी जेब से निकाल के एज ऑफ गॉड्स मैजिक चांट करना चालू किया, लेकिन उसको वापस इंटरप्ट हो जाता है वो वॉइस से जो कि उसके पीछे से आती है। ये वॉइस और किसी और की नहीं, हाजिमे की होती है, जो कि हाजिमे जो फ्रीड के पीछे आ चुका होता है। फ्रीड को इसके कुछ बारे में कुछ मालूम भी नहीं होता है, मतलब कुछ आइडिया भी नहीं होता है, और फायर करता है डोनर से सक्सेशन में। एक ही साउंड में 6 बुलेट्स फायर होती है बिना 1 मिलीमीटर की एरर के, जो 6 की 6 बुलेट एक ही जगह अटैक करती है। लेकिन जो जिससे पहले फ्रीड रिएक्ट कर पाता, जो टर्टल उसके साथ है, उसमें वो बैरियर बना देता है, लेकिन वो बैरियर टूट जाता है 6 की 6 बुलेट के एक जगह पे अटैक करने की वजह से। और हाजिमे उससे गैप को देखते हुए फ्रीड के बिल्कुल पास आ जाता है और उसके ऊपर विंड क्लो से अटैक करता है। By a hair breadth, Freed escaped from being cut in two by falling behind. However, a horizontally slashed wound was carved in his chest. Hajime did not stop his attack. Rotating using the momentum from slashing Freed, he activated the magic shockwave from the magic power conversion and back-kicked Freed. Bam! Ga! Freed barely guarded his left arm, but he could not kill the momentum, and thus his left arm was crushed and his organs were damaged. Freed was horizontally blown away from the White Dragon. जो विंड क्लोज से वो केवल हेयर ब्रेथ से बचता है और अपने आप को 2 हिस्सों में कटने से बचा लेता है, लेकिन फिर भी उसका एक हॉरिजॉन्टल कट बन जाता है उसकी चेस्ट में। हाजिमे यहीं पे स्टॉप नहीं करता, अपने अटैक को अपने रोटेट करके अपने मोमेंटम से मैजिक कन्वर्जन यूज करके एक बैक किक देता है। फ्रीड अपने उस बैक किक को जैसे तैसे अपने जो लेफ्ट हैंड से गार्ड कर लेता है, लेकिन वो मोमेंटम को किल नहीं कर पाता और उसका जो लेफ्ट आर्म है वो टूट जाता है और उसका ऑर्गन डैमेज हो जाता है और फ्रीड हॉरिजॉन्टली फेंक दिया जाता है वाइट ड्रैगन के ऊपर से। Noticing his master's disappearance, the white dragon lost its concentration and the black breath approached in its dash. Immediately after Hajime jumped off the white dragon, Tio's breath grandly blew off the beam along with the white dragon. Roar! Screaming as was being blown away, the white dragon somehow managed to regain its balance in mid-air even after its belly received the attack from the Tio's breath. And it immediately flew towards the ceiling once again. The Freed was on the back of the Ash Dragon with Freed. Reunited in the air, Freed once again boarded the White Dragon. Hajime tried to pursue using aerodynamics, however. The bright red light enveloping Hajime was disappearing rapidly and was not only from his wound, but he also vomited a large amount of blood. His limit break has reached its time limit. In his wounded condition, the damage was further deepened from the limit break, and thus the time limit came earlier. Hajime was falling into the ocean of magma because his aerodynamics was deactivated. Master, hold on. Tio. अब जैसे उसका वाइट ड्रैगन का मास्टर डिसअपियर हुआ, उसके बैक से तो वाइट ड्रैगन का जो कंसंट्रेशन है वो टूट गया था और जो ब्लैक ब्रेथ थी वो उसको एक डैश के अंदर अप्रोच करने लगी थी। इमीडिएटली हाजिमे उसके वाइट ड्रैगन के ऊपर से हट जाता है और टीओ की जो ब्रेथ है वो वाइट ड्रैगन को हिट करती है। जो हिट की वजह से जो वाइट ड्रैगन है वो फेंक दिया जाता है और
बहुत ज़ोर से स्क्रीम करने लगता है, लेकिन वो जैसे तैसे अपना बैलेंस जो है वापस रिगेन कर लेता है मिड एयर में। मिड एयर में जो है वो अपना बैलेंस रिगेन कर लेता है जो टीओ के अटैक के बाद भी, और सीलिंग के पास जाकर के वो रुकता है। वापस से जो फ्रीड है वो ऐश ड्रैगन के बैक पे आ जाता है और रीयूनाइटेड हो जाता है एयर में जो वाइट ड्रैगन के साथ। हाजिमे कोशिश करता है उनको परस्यू करने की, एरोडायनेमिक्स से उनका पीछा करने की, लेकिन रेड लाइट जो उसको हाजिमे को कवर कर रही थी वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी। ये केवल जो है जो उसका ब्लड है वो वॉन्ड से नहीं निकल रहा था, मगर वो उसके माउथ से भी ब्लड निकाल रहा था। लिमिट ब्रेक भी अपनी टाइम लिमिट को रीच कर चुका था, और उसके वुंडेड कंडीशन की वजह से जो है वो टाइम और भी जल्दी आ गया था। हाजिमे का एकदम से जो एरोडायनेमिक्स का जो मैजिक है वो बंद हो जाता है और वो ओशन में गिरने लगता है। तभी उसको टीओ आके सपोर्ट करती है और जैसे तैसे बचाती है। टीओ फ्लू टू द फॉलिंग हाजिमे Tio flew to put the falling Hajime on her back. Hajime, whose damage deepened from limit break after effects and should have collapsed, managed to somehow get into cleaning position, and his eyes shone as he glared at Freed above. From what he saw, even the ash dragons were attacking Yue, and the girls had gathered by Freed's side. Hajime, Hajime-san! Shouting Hajime's name, Yue and Shia came running. Tio landed on the nearby foothold. She did it because the possibility of the current Hajime not being able to endure Tio's battling movement and fall was high. Having jumped onto the same foothold, Yue and the Shia immediately came to Hajime's side and supported his body. अब टीओ जो है गिरते हुए हाजिमे के पास गई और उसको जैसे तैसे अपनी पीठ के ऊपर बिठा लिया। हाजिमे के जो डैमेज है वो लिमिट ब्रेक की वजह से और ज़्यादा वो सीवियर हो गया था, और उसने जैसे तैसे फिर भी अपने आप को जैसे तैसे क्लीनिंग पोजीशन पे ले आया और वो अपनी आंखों से फीड को ऊपर घूर रहा था। उसने क्या देखा कि जो एश ड्रैगन जो यू और बाकी लड़कियों को अटैक कर रहे थे वो भी फ्रीड के साइड आ गए थे। यू एंड दी गर्ल्स जो बाकी की लड़कियां थी वो दोनों लड़कियां भी टीओ के पास आ गई, टीओ के पास भाग के आ रही थी। टीओ कोई एक मतलब जो फुटहोल्ड है पास ही एक फुटहोल्ड पे लैंड कर गई थी, क्योंकि उसको डाउट था कि हाजिमे की जो अभी कंडीशन है उसमें वो टीओ के ऊपर नहीं रह सकता बैटल कंडीशन में, और बहुत हाई चांसेस है कि वो गिर जाएगा टीओ की पीठ पे से, इसलिए वो मतलब फुटहोल्ड पे जाके लैंड कर गई। यूए और शिया भी वहाँ आ जाती है और हाजिमे की बॉडी को सपोर्ट करने लगती है। What a dreadful force! Those women were also not normal. A Ryujian race that should have been annihilated, no chant, no area using magic user, and a rabbit man tried with an unexpected power and the ability to see future. They are also possibly users of Age of Gods magic, and to have cornered me now, it would have been my side that would have gotten beaten if it didn't the first attack. हाँ, अब यहाँ फ्रीड बोलता है कि क्या ड्रेडफुल फोर्स है। एक वुमेन, ये वुमेन भी नॉर्मल नहीं है, एक यूजन रेस की जो वुमेन है, एक जो है कि बिना चांट के मैजिक यूज़र, और एक रैबिट यूज़र जो कि उसके पास अनएक्सपेक्टेड पावर है और फ्यूचर देख सकती है। मुझे लगता है सारे के सारे एज ऑफ गॉड्स मैजिक यूज़र हैं और इन्होंने मुझे कॉर्नर कर दिया। अगर देखा जाए तो इन लोगों ने मेरे को अभी हरा दिया होता अगर ये पहला अटैक हाजिमे को हिट ना करता तो। हाँ, Squeezing his words, Freed was exchanging gazes with Hajime, creating sparks. Panting, Freed touched the wound carved on his chest with his unhurt right hand. Why are you assuming this is the end? I can still fight. Hajime's expression turned ugly because of the Freed's words. But even with his tattered body, Hajime's eyes were shining with the killing intent while he declared the battle to continue. अब जब फ्रीड ने ऐसा बोला तब वो हाजिमे और जो फ्रीड दोनों अपनी जो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर घूर रहे थे और उसके वजह से स्पार्क्स क्रिएट हो रहे थे। फ्रीड अपने राइट हैंड से अपने जो चेस्ट पे जो मतलब वॉन्ड क्रिएट हुआ उसको टच करता है और बोलता है कि ऐसा मत सोचो कि ये एंड है, मैं अभी भी मतलब फाइट कर सकता हूँ। हाजिमे का जो एक्सप्रेशन था वो और बिगड़ जाता है और वो भी मतलब घूरते हुए अपनी आइज से बोलता है कि हाँ,
मैं भी अभी कंटिन्यू कर सकता हूँ, बैटल कंटिन्यू रहेगा। Of course, the torrent of killing intent overflowing from you expressed you would not give up, no matter how wounded you are. Not only do you have a dreadful power, but you also have killing intent that could devour your enemy. Now was it the attachment to survive? तो फ्रीड बोलता है उस पर, ऑफकोर्स तुम मतलब जो किलिंग इंटेंट तुम निकाल रहे हो उससे मुझे पता समझ में आ रहा है कि तुम अभी भी कंटिन्यू करोगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने वुंडेड तुम हो चुके हो। तुम्हारे पास ना ही केवल बहुत मतलब ओवरवेलमिंग पावर है, लेकिन तुम्हारा किलिंग इंटेंट भी है जो कि एनिमी को निकल सकता है। क्या ये इस वजह से क्योंकि तुम्हारा जो सर्वाइवल के लिए अटैचमेंट है उस वजह से ये सब? Guessing once, then Fried made the resolute expression and glared at Hajime again. I don't want to use this method, but it is necessary to use it if I cannot kill powerful enemies like you. What did you say? Not answering Hajime's question, Fried said something to a small bird-shaped demonic beast, unknown as to when it landed to his shoulder. Then, rumble, 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 rumble. अब फ्रीड ने गैस कर लिया था और अपना जो है और दृढ़ विश्वास निश्चय कर लिया था और हाजिमे के ऊपर ग्लेयर करता है। हालांकि मैं इस मेथड को यूज करना नहीं चाहता, लेकिन तुम जैसे पावरफुल एनिमीज को निपटाने के लिए मुझे इसे यूज करना ही पड़ेगा। हाजिमे पूछता है कि क्या कहा तुमने? फ्रीड हाजिमे के क्वेश्चन को आंसर नहीं करता और वो कोई एक स्मॉल बर्ड लाइक डेमनिक बीस्ट से कुछ कहता है। किसी को तो नहीं पता कि वो स्मॉल बर्ड कब उसके पास आके बैठी, और जैसे वो अपने कुछ उससे बोलता है रंबल रंबल वाली साउंड आने लगती है। स्प्लैश कबूम, ग्रेट ट्रिमर्स शॉक द एंटायर स्पेस। नो, द एंटायर गैरन ग्रेट वोल्केनो एंड द ओशन ऑफ ग्रेट मैग्मा बिगिन टू rampaging, accompanied with a tragic roaring sound. Suffering from the sudden shockwave from below, Hajime party got on the all fours and screamed, while desperately trying to balance themselves. The great turmoil was gradually became even more intense and could only be said to reach 7 on the Richter scale. From the ocean of magma, numerous fat pillars, the magma pillars began to sprout. Hajime-san, the magma was level. With the Shias bird, the magma surrounding the foothold where the Hajime party were was indeed rising in level. What did he do? अब जैसे उसने मतलब उस बर्ड से कुछ कहना स्टॉप किया, वैसे ही ग्रेट ट्रिमोर जो था एक शॉकवेव थी, उसने मतलब पूरे ग्रैंड गेट वोल्केनो को शुक कर दिया था, मतलब हिला दिया था। ओशन ऑफ मैग्मा जो है वो रैम्पेज पे जाने लग गया था, जिसकी वजह से ओशन का लेवल जो है बढ़ने लग गया था। जिस फुटहोल पे वो खड़े थे वहाँ पे देख शिया की जैसे वार्निंग आई तो उन्होंने नोटिस किया कि मतलब जो ओशन का जो मैग्मा का लेवल है वो बढ़ने लग रहा है, और वो सोचने लगता है कि उसने क्या किया। हाजिमे स्क्वीज्ड हिज वर्ड्स एंड आस्क्ड द ऑब्वियस कल्प्रिट बिहाइंड द सिचुएशन, फ्रीड। हैविंग मूव्ड फ्रॉम द सीलिंग अबव द मिडल आइलैंड, फ्रीड आंसर्ड द क्वेश्चन, आई ओनली डिस्ट्रॉयड द कीस्टोन। Keystone? That's right. Didn't you think it was strange when you saw the magma? Guaran Great Volcano is obviously an active volcano. However, there's no record of its erupting until now. What I mean is there must be something controlling the activity of the underground magma reservoir. That's the keystone, huh? Don't tell me it is. I have destroyed the gigantic keystone that calmed down the magma reservoir. Thus, this great dungeon will soon be destroyed. And although I deeply regret that I can't give my Akins the edge of God's magic of this dungeon, it isn't that regrettable if it means to kill you here. Be destroyed along with this great dungeon. अब जैसे हाजिमे बोलता है कि उसने अपने जैसे तैसे बोलता है कि उसने क्या किया, मतलब इस क्वेश्चन को पूछता है फ्रीड से। उसी समय जो है फ्रीड जो है वो सीलिंग की जो मिडिल आइलैंड है उसकी सीलिंग की तरफ मूव कर जाता है, और वहाँ से वो आंसर करता है कि मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया कीस्टोन को। हाजिमे पूछता है कीस्टोन? हाँ, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि क्यों स्ट्रेंज है कि मतलब ये ग्रेट वोल्केनो मतलब तुमने इस मैग्मा को
मतलब तुमने ये नहीं सोचा कि हैरान नहीं हुए कि मतलब इस मैग्मा को देख के कि गैरोन गेट के वोल्केनो एक एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन फिर भी कभी इसका कोई इरप्शन का रिकॉर्ड नहीं था। मैं जो कहना चाहता हूँ उसका मतलब ये है कि ये जो कुछ चीज़ ऐसी है जो इसकी पूरी जो मैग्मा को कंट्रोल करती है, और वो की स्टोन है, और मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मतलब अब मैग्मा अनकंट्रोल होकर के ये पूरा जो ग्रेट डंजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालांकि मुझे इसका पछतावा है कि मैं मतलब एज ऑफ गॉड मैजिक को मतलब नहीं बचा पाऊँगा, या फिर जो भी वो कहना चाह रहा है इस जगह। लेकिन अगर ये इससे तुम लोग मर जाओगे तो सो बी इट, यही सही। I don't know, I'm fine without you.